Good morning to you all. Good morning, sir. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. So in the last class, what we are discussing. Let us go to those questions. Firstly, so where is the question? Okay. So let me share the PDF. Okay. So I think we have gone through this question. Are you able to see the PDF? Are you able to see the PDF? Yes, sir. Okay. So we have seen this question. Let us move to the next question. Okay, we have also seen this question. The next question is, oh, I think we also have seen this question also. है ना? Yes, sir. 370 answers. Okay, so we have seen this question in the last class. Let us move to the next question. So have you understood the concept behind this question? So have you? सर एक बार और दीजिए Yes. ये वाला इस क्वेश्चन में मेन क्या ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है, दैट इक्वेशन और इट इज characterized by this yt is equal to x square of t. So this x square of t is representing what? That there is a square law device. There is a presence of square law device. Okay, so whenever you will see this type of question in case of fm, then what you have to do that yt is equal to x square t. It may be there that yt is equal to x cube t or x to the power 4t, like this. Okay, so this represents the multiplier factor, multiplication factor. So इस केस में क्या होता है, in case of fm signal, only the delta f will be multiplied by the multiplication factor. If the multiplication factor is m, then delta f will become m times delta f. Okay, so delta f1 मान लेते हैं. तो अगर फ्रीक्वेंसी डेविएशन कुछ दिया हुआ है, तो जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा आफ्टर दिस इनपुट, we will have m times delta f. Okay, in the same way, अगर delta f increase हो रहा है, so bandwidth will also be increased, but there is no any effect on the maximum frequency of the modulating signal. Modulating signal frequency will remain unchanged. Okay, so this will remain unchanged. So यहाँ पर जो main change आता है, वो आता है frequency deviation में. So based on that, we have a frequency deviation for this question is given, and the signal bandwidth, that is the maximum frequency in the modulating signal. So fm is given, and we have delta f is given. Okay, so based on these values, we have to find out the bandwidth of the output signal. So output signal is a frequency modulated signal with a multiplication factor of 2. So we know that the bandwidth for FM signal is given by Carson's rule, twice del F plus FM. So at the output, whatever we will get del F, the value of del F will become twice, because here x square signal is present. So 92, it will become 2 into 90 into 2, twice of FM will be there, and FM will remain as it is. तो FM का जो value था 5 किलोहर्ट्ज, वो 5 ही रहेगा, क्योंकि 90 भी किलोहर्ट्ज में ही दिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखा अलग अलग. So it will remain as 5. So we will have 2 into 918 180 और 5 185, and this will become 360 and will become 370 kilohertz. Okay, so bandwidth for FM. So this formula is known as what? This formula is given by Carson, so it is known as Carson's rule.
Carson's rule. Okay, so this is used for finding the bandwidth of AM as well as the bandwidth of FM as well as PM, the phase modulation. Okay, so let us move to the next question. Okay, now phase modulation. So carrier in phase modulated with frequency deviation of 10 kilohertz by a single tone frequency of 1 kilohertz. So this is what? So from the question, single tone frequency of 1 kilohertz, that is FM, it is FM, and deviation, that if it is delta F is given, deviation 10 kilohertz. So if the single tone frequency is increased to 2 kilohertz, अब ये FM dash हो गया, मान लेते हैं FM dash is equal to 2 kilohertz, assuming that phase deviation remains unchanged. Okay, phase deviation is unchanged, so the bandwidth of PM signal is. So what will be the bandwidth? We have to find out the bandwidth again in this case. So as I have already told you that Carson's rule is used for FM as well as PM. So bandwidth is nothing but twice of del F plus FM. So पहले क्या दिया हुआ था? So del F का जो वैल्यू है वो अनचेंज्ड है. चेंज क्या हो रहा है? सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज. इस 1 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को चेंज करके 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल कर दिया गया. So simply twice, I think del F is what? Del F is given as 10 kilohertz plus FM is given as what? FM is given as 2 kilohertz. Okay, so we have 10 plus 2, 12, 12 to the 24 kilohertz. Very simple. 24. Just wait for a minute. No, so I think I have done some mistake. So let me see that. Okay, question में क्या दिया है? Deviation दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? Single tone frequency of 1 kilohertz. If the single tone frequency is increased to 2 kilohertz. Okay. Single tone frequency 2 kilohertz अगर हो गया, so assuming that the phase deviation remains unchanged. Okay, so deviation है 10 kilohertz का. $10 किलोहर्ट्ज है और ये 1 किलोहर्ट्ज है. तो इस केस में क्या होना चाहिए? Assuming that the phase deviation remains unchanged, the bandwidth of PM signal is. तो ये तो 24 किलोहर्ट्ज कितना आ रहा है? 11, 10 तो 12, 12, 24, so 24 kilohertz. So what is there any concept which we are missing here? Can anybody tell me? सर यहाँ पे जो हम लोग का ये सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 से मतलब 1 से इंक्रीज होके 2 हो जा रहा है. तो सर इसका ये हो जाएगा ना 2 - 1, कितना उसमें चेंजेस है? कितना उसमें चेंज है? Let me see that. So कितना चेंज है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो एक्चुअली दिया हुआ है ना कि पहले ये 1 किलोहर्ट्ज था और अब 2 किलोहर्ट्ज हो गया. ठीक है, अगर 2 किलोहर्ट्ज हो गया है तो सिग्नल तो यही होना चाहिए, 2 किलोहर्ट्ज ही होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास पहले 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल था वो 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल अब हो गया. इंक्रीज टू 2 किलोहर्ट्ज मतलब 1 किलोहर्ट्ज था, 2 किलोहर्ट्ज अब हो गया है. तो 2 किलोहर्ट्ज हो गया है तो ये 2 किलोहर्ट्ज ही लेंगे. ऐसा नहीं लेंगे कि 2 - 1 1 किलोहर्ट्ज. ऐसा नहीं लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे. दिया हुआ क्या है फिर से देख लें. फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 10 किलोहर्ट्ज. ओके, फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ है पीएम का. Single tone frequency of 1 kilohertz and the single tone frequency is increased to 2 kilohertz, assuming that phase deviation remains unchanged. Okay, let me clear this firstly.
let us go through it again. So what is the frequency deviation? What is the value of frequency deviation here? फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो 10 किलोहर्ट्ज ही दिया हुआ है, ये तो क्लियर है। 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल था, उसे 2 किलोहर्ट्ज का सिग्नल बना दिया गया। अगर ऐसा होगा तो जो सिग्नल है वो 2 किलोहर्ट्ज का 2 किलोहर्ट्ज ही आएगा, ठीक है। फेज डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। अच्छा, यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ 10 किलोहर्ट्ज, और यहाँ क्या दिया गया है? फेज डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। तो फेज डेविएशन और फ्रीक्वेंसी डेविएशन का यहाँ कुछ इस्तेमाल होगा। सो इन केस ऑफ PM सिग्नल, phase deviation, not the frequency deviation, phase deviation is equal to modulation index, and modulation index is what? Modulation index MF is equal to modulation index for MF यहाँ पर phase deviation, okay, यहाँ पे क्या लिखा हमने? phase deviation is equal to what? The modulation index for FM सिग्नल। फॉर दैट केस FM सिग्नल के लिए अगर बात करें तो डेल एफ बाई FM, ये हम लोग जानते हैं क्या? MF इज इक्वल टू डेल एफ बाई FM हम लोग जानते हैं क्या? इजंट इट? और बोला क्या गया है? फेज डेविएशन कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डेविएशन के बारे में नहीं बोला गया कि वो कांस्टेंट है या नहीं है। ये देख रहे हो, यहाँ पर पहले जो दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया गया है, और बाद में कहा गया है कि फेज डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो चेंज हो सकता है, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहाँ से आएगा? MF का वैल्यू हमारे पास चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस FM। तो अभी फेज डेविएशन दिया हुआ है क्या? फेज डेविएशन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये दिया हुआ है, MF दिया हुआ है। MF कितना दिया हुआ है? MF 10 दिया हुआ है। डेल एफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन नहीं पता है। FM कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ था पहले। तो यहाँ से डेल एफ का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिए 10, ठीक है, किलोहर्ट्ज। अभी डेल एफ मालूम है 10 किलोहर्ट्ज। सो ये डेल एफ तो उतना ही हो गया जितना कि फेज डेविएशन है, सॉरी फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, तो 10 था ही तो 10 ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं? अभी जब ये चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया? फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज टू 2 किलोहर्ट्ज, तब MF कितना हो जाएगा? MF हो जाएगा कितना? MF फॉर द वैल्यू ऑफ 2 किलोहर्ट्ज सिग्नल कितना हो जाएगा? MF डैश इसे मान लें इज इक्वल टू MF डैश विल बिकम डेल एफ, जो कि 10 किलोहर्ट्ज है, और FM कितना हो गया? फॉर 2 किलोहर्ट्ज 2, सो व्हाट इट विल बिकम? यहाँ पर क्या है? फेज डेविएशन विल रिमेन कांस्टेंट। फेज डेविएशन विल रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि MF विल आल्सो विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब है 10/2 जो हमारे पास अभी मिल रहा है, दैट पहले हमें क्या मिला था? मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू। पहले हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू मिला था कितना? मॉड्यूलेशन इंडेक्स डेल एफ कितना था? डेल एफ था 10 और FM था 1। पहले 10/1 था, और इसी पर बेस्ड हमारे पास पहले MF का वैल्यू ये था। नाउ एज MF विल रिमेन अनचेंज्ड, सो 10/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एफ डैश बाई 2, वेयर 2 इज व्हाट? 2 is the frequency, the next frequency. Based on that,
the del f will change. So del f dash is equal to कितना हो गया ये 20. del f dash 20 हो गया, मतलब ये बाद का फ्रीक्वेंसी डेविएशन है. ठीक है, अगर ये बाद का फ्रीक्वेंसी डेविएशन है, so how we can get that value of bandwidth by Carson's rule is equal to 2 times del f dash plus fm. So which should be equal to twice of del f dash is what? Is 20 plus fm is what? Fm for the case is 2. So what should be the value here? 20 और 2 22 दूना 44 kilohertz. Okay, so have you got it? So इसे हम डिलीट करते हैं. So यहाँ पर हमें क्या दिया गया था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया था फ्रीक्वेंसी डेविएशन पहले 10 किलोहर्ट्ज था. ठीक है, जब 1 किलोहर्ट्ज का सिग्नल था. ठीक है, सिंगल टोन फ्रीक्वेंसी था. तो पहले वाले केस के लिए फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. सो वी कैन फाइंड आउट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ओके, फॉर एफएम, फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए हम एमएफ अगर निकाल लें तो वी हैव गॉट दिस एमएफ एज 10/1. ओके, इन द नेक्स्ट केस जब कहा जा रहा है क्या कि सिंगल टोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर दिया गया, मतलब एफएम को इंक्रीज कर दिया गया. सो वी विल हैव अ 2 किलोहर्ट्ज सिग्नल एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल हैव अनदर frequency deviation. So we can write it as 10/1 is equal to del f by yes, so 10/1 is equal to del f by 2. So let us in. Okay, so what we have, firstly mf we have calculated 10/1. In the next part we can have the 10/1 is equal to del f by 2. Again del f by 2 is what? Del f by 2 is the modulation index, and modulation index is equal to phase deviation. Okay, for the case of phase modulation. So phase deviation is remain unchanged. So we will have the value of delta f dash, that is next frequency deviation as 20. So we can find out 2 del f dash plus fm. So we will get this. Okay, is it okay? So is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are moving to the next question. Okay. The diagonal clipping in amplitude demodulation using envelope detector can be avoided if RC time constant of the envelope detector satisfies the following condition. Here W is the message bandwidth and omega is carrier frequency, both in radian per second. Okay, so I think we have already discussed this relation, discussed about the relation. So मैं भी इस पे एक्सपेक्टिंग नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग एक रिलेशन देखे थे टाइम कांस्टेंट के लिए. वो रिलेशन क्या था? इट हैज सम रेंज, और इस पर बेस्ड करके हमने एक क्वेश्चन भी बनाया था जिसमें कि एक रेंज आया था और उसके बीच का एक वैल्यू आंसर आया था, है ना. सो व्हाट वाज दिस रेंज? द रेंज ऑफ दिस टाइम कांस्टेंट इज 1/fc to 1/fm. so we have seen this range. Okay, so this is the condition for envelope detector. Okay, so this should be follow for a good reception using envelope detector. So I think from this relation you can find out the answer. So which is the answer? Where FM was what? FM was the maximum frequency of the modulating signal. FC was the maximum frequency of the carrier signal. So can anybody tell me which should be the answer? Sir, option A. So which option? Option A. Option A. So RC, Yes, sir. RC should be less than 1/W. So RC
So W is what? W is what? W is the message bandwidth. bandwidth. W is the message bandwidth. So FM is the message frequency. So RC should be less than 1 by FM. ठीक है, चलेगा. RC should be greater than नहीं हो सकता है. RC अब FC के रेस्पेक्ट में ओमेगा क्या है? ओमेगा इज अ कैरियर फ्रीक्वेंसी. तो कैरियर के, अगर कैरियर के रेस्पेक्ट में आंसर निकालना होता तो क्या होता? RC शुड बी ग्रेटर देन 1 बाई FC. तो RC शुड बी 1 बाई ग्रेटर देन FC. ये भी तो आ रहा है. D भी आ रहा है क्या? D भी आ रहा है क्या? Yes sir. Yes sir. D भी आ हाँ, इस रिलेशन से हम देख पा रहे हैं RC का वैल्यू जो है 1 बाई FC से बड़ा होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि इसका आंसर दोनों होना चाहिए. ठीक है. So okay, so is it clear? Yes sir. Let us move to the next सर question. इसमें आंसर कौन सा टिक होगा? ऐसा क्वेश्चन में तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि किसको टिक करे किसको छोड़ दे. हाँ, तो यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ से तो देखने से यही लग रहा है कि दोनों ही होना चाहिए. तो आंसर में जो होगा वो मतलब दोनों में से कोई भी अगर आंसर लगाए या दोनों आंसर लगाए. अब अगर वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी होता है कि मल्टीपल आंसर्स होते हैं. गेट के क्वेश्चन में ऐसा भी रहता है. ओके, सो यू कैन, आई थिंक Yes, sir. यू कैन पुट any one of these answers. Okay, so I will again see that is there any change in the relation or what. Okay, so अभी तक हम दोनों को आंसर मान रहे हैं. ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को बाद में. Okay sir. Okay, next question. A message signal with bandwidth 10 kilohertz. मैसेज सिग्नल का बैंडविड्थ दिया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज. ठीक है. इज लोअर साइड बैंड SSB मॉड्यूलेटेड. ओके, सो एक 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, उसे सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन के थ्रू मॉड्यूलेट किया गया विथ लोअर साइड बैंड. ओके, with carrier frequency FC1 10 to the power 6 hertz. The resulting signal is then passed through a narrow band frequency modulator. उसी सिग्नल को फिर से नैरो बैंड FM के से पास किया गया है विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी FC2 is equal to 10 to the power 9 hertz. So the bandwidth of the output would be, तो ये कैसे होगा देखें. तो आप लोगों को पता होगा कि सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन में हमें क्या मिलता है. इन केस ऑफ सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो कैसा होता है? वो स्पेक्ट्रम या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है. याद है सभी को? Yes sir. जिसमें से ये जो ऊपर वाला पिक्चर है ये अपर साइड बैंड है या लोअर साइड बैंड है? ऊपर वाले पिक्चर में अपर साइड बैंड. तो यहाँ पर क्या है? ये अपर साइड बैंड सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन. और ये क्या है? लोअर साइड बैंड सिंगल साइड बैंड. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? लोअर साइड बैंड SSB दिया हुआ है. ठीक है, सो इस लोअर साइड बैंड SSB में जो मैसेज सिग्नल है वो 10 किलोहर्ट्ज का है. मतलब FM दिया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी FC1. इस सिग्नल को इस कैरियर के थ्रू, मतलब इस मैसेज सिग्नल से इस कैरियर को मॉड्यूलेट किया गया 10 to the power 6 हर्ट्ज. ठीक है, द रिजल्टिंग सिग्नल इज देन पास थ्रू. तो अब जो रिजल्टिंग सिग्नल आएगा उसे पास किया गया नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से. तो हमें पता करना है कि बैंडविड्थ कितना होगा. तो अभी मुझे बताएं कि जब ये FM मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी और ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है, तो मुझे बताएं कि सिंगल साइड बैंड लोअर साइड बैंड SSB मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या मिलेगा. कैन एनीबॉडी टेल मी? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि हमें कौन सा सिग्नल जनरेट करना है? लोअर साइड बैंड SSB. ओके, तो जब ये हमारे पास FM और FC दोनों है
तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे एफएम और एफसी को? अगर हमें हमें मिलता क्या है, हमें एक अपर साइड बैंड मिलता है और एक लोअर साइड बैंड मिलता है। तो हमें कंपोनेंट्स कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा FC1 प्लस FM और एक क्या मिलेगा? FC1 माइनस FM। ये सभी लोग जानते हो ना ये चीज, कि जब भी हम Yes, sir. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं और खास करके जब सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन या डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन करते हैं, तो हमें FC प्लस FM और FC माइनस FM का ही कंपोनेंट हमेशा मिलता है। तो अब अगर हमें हमसे यहाँ कहा गया है कि वी हैव LSB लोअर साइड बैंड SSB है, तो कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, प्लस FM वाला या माइनस FM वाला? माइनस FM वाला। क्योंकि ये USB बनाता है और ये LSB बनाता है। ओके, तो FC1 माइनस FM का कंपोनेंट हमें मिलेगा कहाँ पर? यहाँ इस LSB के स्पेक्ट्रम में। तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बताए मुझे। FC1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10⁶ किलोहर्ट्ज। तो 10⁶ किलोहर्ट्ज को क्या हम, क्योंकि FM दिया हुआ है किलोहर्ट्ज में और FC1 दिया हुआ है हर्ट्ज में, तो इसे किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? कितना किलोहर्ट्ज होगा क्या? यस सर। होगा ना, क्योंकि 10⁶ है तो 3 में डिवाइड कर 3 के लिए किलोहर्ट्ज बनाएगा, तो बाकी का 3 बच जाएगा। तो FM, अब हमें जो सिग्नल मिलेगा यानी कि FC1 माइनस FM का वैल्यू क्या आएगा? 1000 किलोहर्ट्ज। 998। यस, तो 1000 माइनस 10 कितना किलोहर्ट्ज मिलेगा? इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 990 किलोहर्ट्ज, isn't it? यस सर। ओके, सो अभी जो वैल्यू मिला, यानी कि अभी जो हमें सिग्नल मिला है, नाउ दिस सिग्नल इज पास थ्रू अ नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। अब ये नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से जैसे ही पास करेगा तो अब इसके साथ एक कैरियर ऐड हो रहा है। कौन सा कैरियर ऐड हो रहा है? FC2, और ये कितना है? 10⁹ हर्ट्ज। तो 10⁹ हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो कितना होगा, बताएं मुझे। 1000 किलोहर्ट्ज। 1000 किलो हर्ट्ज या 10⁶ किलो हर्ट्ज? ये 10⁶ किलोहर्ट्ज। ये 10⁹ हर्ट्ज है, तो 9 में से 3 जीरो निकाल लेंगे तो वो किलो बनाएगा और 10⁶ बचेगा, तो 10⁶ किलो हर्ट्ज। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या कहा गया है? FC2 ये है और इसे नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से पास किया गया है। तो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से जब पास किया जाता है तो मुझे ये बताएं कि नैरो बैंड FM के लिए बैंडविड्थ कितना होता है, क्योंकि हमें आउटपुट बताना है किसका। तो पहले हमने क्या किया है, जो भी हमारे पास सिग्नल आ रहा था उसे SSB सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटर से पास किया, और जो भी सिग्नल अभी मिला इस सिग्नल को हमने पास किया कहाँ से? सो डू एनीबडी वांट टू राइट एनीथिंग? व्हाट इज हैपनिंग? ओके, सो अभी जो SSB सिग्नल मिला है इसे हम पास कर रहे हैं किससे? इसे हम पास कर रहे हैं नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से। तो हमें SSB का जो आउटपुट मिला, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या मिला? 990 किलोहर्ट्ज। अब ये जो सिग्नल मिला इस फ्रीक्वेंसी का, इसे नैरो बैंड FM से पास करेंगे, तो अब यहाँ का बैंडविड्थ पूछा जा रहा है कि आउटपुट बैंडविड्थ क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, नैरो बैंड FM के लिए जो बैंडविड्थ होता है वो कितना होता है? ट्वाइस ऑफ FM होता है। एंड ट्वाइस ऑफ FM। ये ट्वाइस ऑफ FM होता है नैरो बैंड FM के लिए। अब ये जो FM है ये क्या, ये किसके बराबर होगा? इस नैरो बैंड FM के लिए मैसेज सिग्नल का काम कौन कर रहा है? सर 990 SSB का जो इनपुट है। यस। सो इसीलिए इस बार FC2 से कोई मतलब ही नहीं है, ये FC2 जस्ट डेविएट करने के लिए दे दिया गया है। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 990 किलोहर्ट्ज करेंगे तो कितना आएगा? 2 9 18, 2 9 18 और 119, इतना किलोहर्ट्ज
अब ऑप्शन जो दिया हुआ है हम देख रहे हैं कि सारा का सारा ऑप्शन हर्ट्ज में दिया हुआ है। ओके, तो 1980 यानी कि 1980 किलो हर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में बदल देंगे तो कितना होगा? 1980 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये एक इंटीग्रल डिजिट में दिया हुआ है, इंटीजर वैल्यू 2 है। तो अगर इसको यहाँ और यहाँ जो पावर्स है 6 है, 4 है, 9 है और 10 है, तो यहाँ पर 3 डिजिट है। तो इस 3 डिजिट के पहले अगर पॉइंट लाएंगे, अगर 1.980 लिखेंगे तो इंटू यहाँ 10⁻6 हर्ट्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि यहाँ जो आंसर आ रहा है 1.980, ये अप्रोक्सीमेटली किसी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है सर, ऑप्शन बी। अप्रोक्सीमेटली, ओके, हाँ यहाँ देखो ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, यानी कि इसके लगभग में है। 1.98 है तो एक्चुअली 2 ही इसे मान लेंगे अगर इंटीजर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज विल बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, so can we move to the next question? यस सर। तो और भी कोई समझ रहे हो या नहीं? सिर्फ एक ही स्टूडेंट की आवाज आती है, ऐसा क्यों भाई? यस सर, समझ में आ रही है। ओके, ठीक है, तो आप लोग भी कुछ बोलोगे तब ना। ठीक है, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so it is a common data question. It is a common data question. So question में क्या दिया गया है? Consider a following amplitude modulated signal where FM is less than B, maximum frequency is less than the bandwidth. Okay, so AXM XAM that is a modulating signal जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो modulating signal दिया हुआ है, in this modulating signal, sorry, this is a modulated signal. Okay, so this modulated signal will consist of 10 1 plus 0.5 sin 2 pi fmt cos 2 pi fct. So we can अगर ये पहले नहीं भी दिया होता तो we can understood that this is a that is amplitude modulated signal. Okay, अब यहाँ पूछा जा रहा है average sideband power of the AM signal is, average sideband power of the AM signal is, तो average sideband power पूछा जा रहा है। तो sideband power P sideband power is equal to होता क्या है? sideband power का वैल्यू क्या कोई बता सकते हो? यस सर, AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाय 4। AC स्क्वायर MA स्क्वायर बाय 4। 2 होगा सर, 2 नहीं सर, हाँ सर वहाँ 4 होगा। नहीं सर वहाँ 4 होगा, 2 2 जो 4। यस सर, वहाँ पे 2 होगा, MA स्क्वायर बाय 2। यहाँ 2 होगा। यस सर, यही AC तो। स्क्वायर बाय 2 और MA स्क्वायर। यस सर, MA स्क्वायर बाय 2। Okay, so let us see that how what we can get. So ये आता कहाँ से है? ये भी जान लेते हैं। टोटल पावर। हाँ, ये हम टोटल पावर का फॉर्मूला है। हम लोग क्या जानते हैं? PT is equal to PC 1 plus MA स्क्वायर बाय 2। ओके, अभी इसे हम लिख सकते हैं क्या? PT is equal to बाई PC MA स्क्वायर बाय MA स्क्वायर बाय 2। अब PT जो है हमें क्या लाना है? साइड बैंड लाना है। तो PT एक्चुअली टोटल पावर किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? यही टोटल पावर कैरियर पावर और साइड बैंड पावर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, सो बाय PC, सो इट इज 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? PC से डिवाइड करें इस दोनों में तो हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस PS बाई PC 1 प्लस MA स्क्वायर बाय 2। 1 1 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हमें क्या मिल गया? PS इज इक्वल टू PC MA स्क्वायर बाई 2। अब ये PC एक्चुअली होता क्या है? PC हम लोग क्या जानते हैं? कैरियर जो सिग्नल होता है CT इज इक्वल टू AC cos ऑफ ओमेगा CT लिखते हैं। तो अगर ये सिग्नल PT है तो PT का अगर हमें एम्पलीट्यूड मालूम है AC,
तो इसका पावर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर बाय 2, AC इज इक्वल टू क्या हो गया, AC स्क्वायर बाय 2, AC स्क्वायर बाई 2 इसीलिए और यहाँ हो गया MA स्क्वायर बाई 2। ओके, तो हमें क्या अब यहाँ Yes, पर sir. AC मालूम है, क्या हमें AC मालूम है, कैरियर का एम्पलीट्यूड मालूम है, यस सर 10 यस 10 होगा, AC क्योंकि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जनरल फॉर्म होता है वो होता है AC 1 प्लस प्लस MA MA साइन sin 2 pi पाई FMT FMT cos cos 2 pi pi FCT. FCT, yes, very good. So अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो we will have the value of AC as 10 and the value of MA as MA is 0.5 0.5 means 1/2। तो हम यहाँ से निकाल लें, 1.2 हम यहाँ से निकाल लें, साइड बैंड पावर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बाई 2 MA स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 और है, ठीक है, इंटू 2 है, यहाँ पर MA स्क्वायर बाई 2 है। सो आया कितना, ये 10 स्क्वायर मीन्स 100 बाई व्हाट 8, तो 100 सर बाई 16 होगा ना 16, सर 16 होगा, 2 का पावर 4 है इधर, 2 है इधर, 2 अच्छा 16 हाँ होगा नीचे 16 होगा, ठीक है, 100 बाई 16, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आई थिंक 3.124 देख लें एक बार, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 4 से 4 तक 16 बार में, 25 बटा 4 का वैल्यू कितना नो होता सर है, 6.25 तो 4 से 24 4 मतलब 12 यस सर वही होगा okay, so 6.25, 6.25 so we have got the answer as 6.25, this is a 2 marks question and I think all of you can do it. Next part is the AM signal gets added to a noise with power spectral density S and F given in the figure below. The ratio of average sideband power to mean noise power would be, okay, so हमें निकालना है रेशियो, क्या रेशियो निकालना है, एवरेज साइडबैंड पावर जो कि हमने ऑलरेडी निकाला है PSB बाय द मीन नॉइज पावर, ओके, नॉइज पावर NP मान लेते हैं, तो हमें ये रेशियो निकालना है, ओके, तो नॉइज पावर जो हम निकालते हैं ये इसका एक स्पेक्ट्रल कंपोनेंट दिया हुआ है, ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी दिया हुआ है। तो अभी हमें जो नॉइज निकालना होता है, दिस नॉइज पार्ट इज द एरिया ऑफ द टोटल PSD, ओके, जो भी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है, यहाँ जो आप एरिया देख रहे हो, ये एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे दिस विल गिव द नॉइज पावर। सो हम क्या देख पा रहे हैं, एक ही तरह का 4 ट्राइंगल है, ओके, तो और देखें यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इसका टोटल जो लेंथ है, ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का B आएगा, क्योंकि अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वैल्यू B आएगा, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखेंगे तो वी विल हैव द वैल्यू B। सो टाइम ओवर होने वाला है, आप लोग देख लें, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। सो अभी एरिया अगर निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू, तो वो क्या आ जाएगा, चूंकि 4 ट्राइंगल है, ओके, 1/2 N0/2, ओके, वेयर N0